So welcome to this sixth in the series, Best. Best is, of course, the best. And Indian Epilepsy Association, no doubt, is the best. And best is Beat Epilepsy, Stay Informed. This is thanks to Dr. Mamta Singh. She coined this. This is the sixth webinar, monthly webinar. Basically informing, providing information, providing impetus, providing all the kind of the best that we can do for someone who has epilepsy. So it is indeed a great moment. And this time it is the turn of the Delhi chapter. And before I hand over the stage to the Delhi chapter, its secretary, Professor Mehndi Ratta, can we have a few words of encouragement to begin with the proceedings by our president, Professor Vengamma. So Dr. Vengamma, the president of the Indian Epilepsy Association, will kickstart the webinar today. And just a couple of housekeeping announcements. The program of the webinar would be, Mansi, would you show the scientific program, or perhaps a little later? And the other thing that we would request everyone, two things. One is there is a feedback at the which will be provided at the end of this webinar. So please make sure that you do fill up the feedback within the chat box only. And the other request is those who are not members of the Indian Epilepsy Association. So it is a humble request and a genuine request that you should become members of the Indian Epilepsy Association. There are lots and lots and lots of benefits of becoming a member of the Indian Epilepsy Association. All these benefits are listed here as well as available on the website. You need to contact your local chapter. As of now, you need to contact your local chapter chairpersons and conveners, and they would help you in becoming members of the Indian Epilepsy Association. But doesn't cost too much, but we will soon hopefully centralize the whole thing. With these initial housekeeping announcements, and we know that there is an extremely good panel for today's webinar. So the initial part of the discussion would be by the panelists. We request everyone else to, we would welcome comments from all others apart from the panelists, but towards the later part during the question and answer session. So with this, I request Professor Vengamma to inaugurate this webinar, say a few words, and then I would pass over the stage to Professor Mehndi Ratta, who is the secretary of the Delhi chapter of the Indian Epilepsy Association. Thank you, Dr. Gagan, and good evening to everybody. And as a president of Indian Epilepsy Association, I welcome all the panelists and all the attendees. I'm very happy today to see almost nearing 200 people are joining today's. And as mentioned by Dr. Gagandev, this is the sixth meeting. Continuously, we started from August 15th. I think the first was done by Punjab chapter, then subsequently by Bombay, then by Bangalore, driving and epilepsy, then subsequently by Dr. Sita J. Lakshmi from Secunderabad chapter, then by Dr. Surekha from Rajasthan on epilepsy and women. And today it's being part of celebrations of our Golden Jubilee celebrations of IEA. This is being hosted by Delhi chapter of IEA under the moderatorship by the Dr. Mamata Bhushan Singh and Secretary of Delhi chapter of IEA, Dr. Manmohan
Singh Mahendratta, and they have chosen a very important and nice topic, that is live your best life, empowering persons with epilepsy. And with these few words, I inaugurate. I'm very happy to inaugurate, and I'm very happy that today we are hosting 6th Best Series uninterruptedly. And I thank the Delhi chapter IEA for taking this initiative and to do this webinar on today. And without much waste of time, I invite Delhi chapter to proceed with today's panel discussion. Thank you so much, Professor Vengama and Professor Gagandeep, for very encouraging words. We know earlier 5 seminars or webinars have been very, very successful. And this is the 6th in the series being organized by Indian Epilepsy Association Delhi chapter. And I'm very grateful to my president, Professor Meena Gupta, and Dr. Malhotra, President and Secretary respectively, to join this webinar. Before I say my initial words for this webinar, I would like to make a humble request to Professor Meena Gupta. Welcome all the faculty members and the delegates. Ma'am, please. Ma'am, unmute yourself, ma'am. Ma'am, unmute yourself. Dr. Meena Gupta, unmute. Hello, can you hear me now? Yes, ma'am. Thank you, Dr. Mahendratta. I welcome all of you to this Delhi chapter webinar, and I hope we can contribute to the management and eliminate some of the myths associated with epilepsy, so as to enable the patients to live a better quality of life. So thank you all for making time for this webinar. Welcome. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. First of all, before I say a few words, I will like to take blessings and touch feet of my seniors. In the audience are Dr. Praveena Shah, Dr. Gauri Devi, Dr. P.K. Sethi, and my own guru, under whom I trained, Professor Meena Gupta. Ma'am, I need your blessing to continue good work. Bless you. And thank you so much, ma'am. And I'm very proud to announce today that 194 members have already joined, including faculty. And I'm very confident that this will cross 200 marks. The silent work has been done by Dr. Mamta and the Delhi chapter, and hope it will be very useful to the end users, that is people with epilepsy and their caregivers. Today is very auspicious day, and we are holding this meeting on an auspicious day. India has completed 1 year of vaccination program, and that was so far a world record. 156 crore or 1.56 billion or 1.1560 million, which is a world record. The another auspicious component for today is, it was on this day that startups had made a beginning 1 year back. And today day has been declared. The day 16 January has been declared as Startup Day. We already have 46 unicorn, and I'm sure one or the other young, bright IT personnel or a medical professional will also start the startup for people with epilepsy and their caregivers. That will be very nice if that starts, because we now know there are devices for seizure detection, early intervention, and things are
advancing very much. Now, there are also international today participants, because as I circulated this information, not only to neighboring countries like Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Bangladesh, but also to whole of Africa. So there are friends from Africa who have also are participating in this. It's a very strong program today. Can you bring it down, because I'm not allowed to share the screen? Mansi, can you? No, the screen. Anyhow, if you can show the program again. Dr. Mamta Singh and myself. Yeah, Mansi, can you project the screen? Okay. So Dr. Mamta and myself have been continuously interacting along with Dr. Gagandeep to bring out a very interesting program. This is the list of panelists. My president, Dr. Meena Gupta, our treasurer, Dr. Malhotra, our Secretary General of Indian Epilepsy Society, Professor Manjari Tripathi, Professor Mamta Bhushan Singh, our own, who was with us earlier in GB Pant, and Dr. Neera Chaudhary, consultant neurologist at Safdarjung Hospital. Ms. Shelly Gandhi, Ronak Sepat, and Yashoda Vakankar, who had been very helpful to some of my person with epilepsy from Delhi. So I think I'll not highlight the program. That I will leave it to Dr. Mamta, whom I requested, or the Delhi chapter requested, to be the moderator and carry on with the program, and we shall be available throughout the program to take up questions and answer. Already 8 questions have come. One I have answered. Somebody asked, my son is 16 years and for 15 years doesn't have seizures. Can he have vaccination? The answer I wrote was yes. I hope I was right. But during panel discussion, we'll have more questions of this type. Professor Mamta Singh, please carry on with the session. Thank you, sir. Thank you so much for all the help and cooperation. Thank you very much. And आप सबका अभिनंदन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है हम लोगों को इस सेशन में। ये हमारा जो एफर्ट है ये प्राइमरीली मरीजों के लिए है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अधिकतर जो आपसे बातचीत करें वो हिंदी में करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। हमारे स्पीकर्स भी आपसे मिली-जुली भाषा में बात करेंगे, लेकिन अधिकतम वो भी हिंदी बोलने का प्रयत्न करेंगे। Mamta, there are participants from Africa also, if you can also. Most of the people understand English. So we are cognizant of people joining from Africa, and they would please bear with us that we are, we would have to speak most often in Hindi, because our patients, are I think more comfortable and understand Hindi better. So anyway, we would be speaking, a mixed Hindi-English presentations would go on. तो जो आप प्रोग्राम देखेंगे ये आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रश्न आते हैं कि आप अपने बीमारी के साथ, एपिलेप्सी के साथ कैसे जिंदगी बिताएं, कैसे बेहतर जिंदगी बिताएं, कैसे आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल में you stay in control of both your life as well as your condition. हम हमारे सब जो प्रेजेंटेशंस हैं वो इसी को एड्रेस करेंगे। तो डॉक्टरों या हेल्थ एजुकेटर्स, एपिलेप्सी नर्सेस, ये सब तो अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन हमने सोचा कि हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करें कि एपिलेप्सी के जो मरीज होते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो अपनी बीमारी के वजह से, एपिलेप्सी के वजह से अपनी जिंदगी में क्या-क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां फेस करते हैं और वो उससे कैसे लड़ना चाहते हैं, और उसमें हमारा डॉक्टरों का, हेल्थ एजुकेटर्स का, काउंसलर्स का क्या रोल हो सकता है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम आपके साथ मरीजों की कुछ वीडियो शेयर करेंगे। मानसी, कैन वी हैव द फर्स्ट वीडियो प्लीज? आप जानते हैं आपको क्या बीमारी है? नहीं मैम, नहीं जानता।
नहीं जानते हैं। आप अभी यहाँ पे क्यों आए हैं? दौरा की बीमारी हुआ है तो मैं कितने साल से है आपको ये बीमारी? आपके हिसाब से मैं- कितने साल से है? 4-5 साल से तो मैं दवाई को खाता हूँ, शीशी वाला 3 गोली खाता हूँ। ठीक है। इस बीमारी के बारे में आपको किसी ने कभी कोई जानकारी दिया? नहीं, अच्छा, बस ये बोले कि किसी डॉक्टर ने, मुझे याद नहीं है, किसी डॉक्टर ने बोले थे कि ये दवाई रेगुलर ही चलेगा, ये छूटेगा नहीं। तो आप रेगुलरली लेते हैं? पर मैं रेगुलर लेता हूँ, मगर कभी कभी ड्रिंक लेता हूँ तो मैडम मैं डर के मारे नहीं लेता हूँ कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी वजह से मैं नहीं लेता। मैं कुछ देरी के बाद तुरंत ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं? नहीं, साइकिल हाँ साइकिल चलाते हैं। चलाते हैं आप? हाँ, अच्छा, और काम क्या करते हैं? काम तो अभी मैडम मैं पहले तो गार्ड की नौकरी कर रहा था, मगर अब तो सब्जी का बिजनेस करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं। झूठ बोलने में क्या फायदा है? अच्छा, आप ये मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ से जानकारी मिलना चाहिए था अपनी बीमारी के बारे में? कहाँ से आपको जानकारी मिलना चाहिए था अपनी बीमारी के बारे में? हमें तो अब क्या करोगे मैम, अब गरीब आदमी को कौन पूछता है? इतनी 50 तरह के टेंशन होते हैं दिमाग में कि अपनी बीमारी देखूं कि अपने बच्चों को नहीं देखूं नहीं, कि ये बात सबके नहीं, लायक ये नहीं। देखूं। बस आप हमें ये बताइए कि अगर कोई आपको जानकारी देना चाहे आपकी बीमारी के बारे में, तो आप कहाँ से ये जानकारी लेना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि टीवी पे कुछ आए या रेडियो पे कुछ आए, या फिर आपके घर पे आके कोई आपको बताए, या आपके डॉक्टर आपको बताए? किस तरह से आप इसकी जानकारी लेना चाहेंगे? ये तो आप बता सकते हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो ये इस वीडियो के लिए मैं डॉक्टर जास्मीन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उन्होंने अपने मरीज का ये वीडियो हमारे साथ शेयर किया, और हमारे बहुत से मरीजों का यही हाल है। वो अपने बीमारी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले, अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। ये शायद हमारी भी कमी है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर्स हैं, एपिलेप्सी नर्सेस हैं। मरीज ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर हमें जो बता दे वो हम कर लेंगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन शायद बेहतर होगा कि मरीज भी थोड़ा अपना विचार हमारे साथ शेयर कर सके, ये जाने कि उसकी बीमारी क्या है और उसको आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक मरीज है, लेकिन हम जानते हैं कि मरीजों की बहुत समस्याएं अलग अलग हैं, और मरीज हमारे सभी एक प्रकार के नहीं हैं। तो हम अब आपसे दूसरा मरीज का वीडियो आपसे शेयर करते हैं। ये एक हमारे यंग पेशेंट हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं, और उनका अपनी बीमारी और अपनी जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। मानसी, कैन वी हैव द सेकंड वीडियो? हेलो, मेरा नाम अस्मिता सेन है और मैं 22 इयर्स की हूँ। फ़िलहाल मैं सिलीगुड़ी में अभी रह रही हूँ। मेरा नाता एपिलेप्सी के साथ बड़ा अजीब सा है, और बोल सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखा है मैंने इस क्या ही बोलो इसको, मैं डिज़ीज़ नहीं कहूँगी सच्ची में, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया है मुझे इस चीज़ ने। मेरा सबसे पहले डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 12 साल की थी, 12 या 13 साल की। और जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ तब मुझे पता चला कि मेरा ये, मतलब मुझे लगा कि ये मेरा लाइफ का अंत है, इसके बाद मेरा कुछ होने नहीं वाला है। और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये। मुझे लगा कि ये इसके साथ मैं रह नहीं पाऊँगी और ये मुझे ख़त्म करना है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बहुत अब नॉर्मल हूँ। एंड मुझे लगता है जब डायग्नोज होते हो ना आप एपिलेप्सी के साथ, तब सबको ही लगता है कि मतलब कोई भी हो उसको लगेगा कि मैं तो भाई अब नॉर्मल हूँ। पर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद मुझे लगने लगा कि ये एक चीज़ है जिसके साथ मुझे तो रहना पड़ेगा।
सिर्फ मेडिसिन से एक फैक्टर नहीं है, और बहुत कुछ फैक्टर्स जुड़े हुए हैं एपिलेप्सी के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ आप रहोगे कैसे, हाउ शुड आई लिव विद एपिलेप्सी। अभी शुरू में तो लगता है कि एपिलेप्सी है और इसके साथ रहना पड़ेगा, तो अभी कैसे रहूँगी मैं, हाउ विल आई लिव विद दिस। बट जब रहने लगते हो इसके साथ, शुरू में बहुत बहुत बुरा लगता है, अपने आप को विक्टिमाइज़ करते हो, अपने आप को मतलब बोलते रहते हो कि हाँ, मतलब अपने आप के लिए बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने समझा कि देखो, अपने आप को अभी हैंडल करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके मैंने छोटे छोटे स्टेप्स मैंने लिए कॉलेज जाके। कॉलेज में मैंने सीखा कि खुद से एपिलेप्सी के साथ कैसे रहना चाहिए, और फैमिली ने भी हेल्प किया बहुत ज़्यादा। उनके पास भी गट्स है, उन्होंने भी समझा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, अभी इसको भी समझना पड़ेगा। और फिर मैंने सीखा कि अपने आप के साथ इस जो इशू है, इसके साथ कैसे रहना पड़ेगा, कैसे रहना चाहिए। तो आई स्टार्टेड लिविंग विद इट। एंड जब भी होता था कोई अटैक, मैंने सीखा कैसे इसके साथ रहना है, क्योंकि अकेले तो रहना ही ना। सोचती हूँ कि मैं इन द मोमेंट जीना पसंद करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये कभी भी हो सकता है मुझे, ये एक अटैक जैसा कभी भी आ सकता है, पर कोई नहीं, मुझे लाइफ जीना है। जैसे नॉर्मल जैसे डिफ़ाइन करते हैं वैसा तो अभी मुश्किल है कहना कि नॉर्मल क्या नहीं है, पर अभी बहुत कुछ है जो हमें करना है और हम कर सकते हैं। थैंक यू। सो ये देखिए आप, ये अस्मिता थी, और अस्मिता स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं अभी, लेकिन उसके साथ शी इज अ बडिंग पोएट, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश किया है। तो देखिए, पहले मरीज और दूसरे मरीज के बीच में कितना अंतर है, यानी कि मरीजों की एस्पिरेशंस, उनकी प्रिपेयर्डनेस फॉर द डिजीज टू हैंडल इट, ये बहुत अलग अलग है। और हमें ये कोशिश करना है कि हम हर मरीज का उसकी परिस्थिति में मदद कर सकें। अब the third and final person, the final patient that I would like to introduce, and आप जिसका वीडियो देखेंगे वो बहुत ही स्पेशल हैं, वो हैं मिस प्रिया जैन। और वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो ना केवल इस एपिलेप्सी से उन्होंने अपनी जर्नी, उनकी एपिलेप्सी के से भी गुजरी है, लेकिन शी इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एपिलेप्सी एजुकेटर। वो बहुत सालों से इस काम में लगी हैं। शी इज अ ट्रेन्ड सोशल वर्कर, और मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ मैंने काम किया है लाइफलाइन एक्सप्रेस में। जब मैं जाती हूँ मेरे क्लिनिक्स में, तो वो बहुत सालों से मेरे साथ आ रही हैं, और मरीजों के साथ उनका बहुत अच्छा राब्ता होता है। वो मरीजों की समस्या समझती हैं और उनको एडवाइस करती हैं। तो अब हम उनका जरा सा सुनते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। मानसी, कैन वी हैव प्रियाज वीडियो? मेरा नाम प्रिया जैन है और मुझे मिर्गी भी थी, और मैं एपिलेप्सी एजुकेटर का काम कई साल से कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि खुद की एपिलेप्सी समझना, किस तरह के हमें दौरे पड़ते हैं, किस तरह का फर्स्ट एड फैमिली मेम्बर्स को जानना चाहिए कि कभी दौरा पड़ा तो क्या करना है उनको, या जब दौरा पड़ा तो क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां भी होती हैं। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि वो जूता सुंघा दो या कुछ और कर दो, लेकिन वो सब चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं।
हमें अपने डॉक्टर से समझना है, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी एपिलेप्सी एजुकेटर समझा सकते हैं, या ऑनलाइन की भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अगर आप वो देख सकते हैं तो अच्छा है। और हिंदी में भी डॉक्टर्स बता सकते हैं कि क्या रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी दिमाग में प्रश्न होते हैं वो हम डॉक्टर से ज़रूर पूछें। ये नहीं सोचे कि डॉक्टर बिगड़ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का काम ही है कि आपको एक्सप्लेन करना, आपको समझा देना कि क्या है आपका मेडिकल कंडीशन, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दवाई कैसे लेनी है, नियम से लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप कहीं रिकॉर्ड कर लें। कोई भी प्रश्न आता है दिमाग में तो जब अगले दफ़े आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछ सकते हैं। नहीं तो जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बहुत सारी ज़रूरी बातें या छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो आप अगर लिख लोगे तो डॉक्टर से ये बातें पूछ लोगे। कई बार लगता है कि हमने ये दवाई खाई तो इससे हमें कोई फलानी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये बातें डॉक्टर से क्लियर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि और लोग जो उस दवाई को कहीं भी खाए हुए वो ऐसा कह देते हैं कि इसको ये अच्छी दवाई नहीं है, इसको बंद कर दो। लेकिन अगर आप अपने नियम से दवाई नहीं खाओगे और बिना डॉक्टर से सलाह करे बंद कर दोगे तो आगे जाके और दौरे बढ़ सकते हैं या और बिगड़ सकते हैं। मिर्गी क्या है ये सब समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब सोसाइटी में लोग अजीब अजीब तरह के प्रश्न उठाते हैं, कोई बोलता है कि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई बोलता है कि ये जना काम नहीं कर सकता, तो फिर हम उन चीज़ों का जवाब कैसे दें। कई बार हम खुद ही सोचते हैं कि हम नहीं स्कूल जा सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हम काम नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। मैं ये दोबारा कहना चाहती हूँ कि अगर हमें मिर्गी है तो भी हम पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। जब तक हमें और कोई डिसेबिलिटी ना हो तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मिर्गी की वजह से हम नहीं कुछ कर सकते। ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें होंगी, डर भी लगेगा, लेकिन हमें उस डर को पार करना है। ये बहुत ज़रूरी है। और उस डर को पार करने के लिए एजुकेशन, जो अपने आप को समझना, मिर्गी को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। मिर्गी को समझेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू प्रिया, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मरीजों को ये सुन के जरूर अपने में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रिया जो है वो बहुत ही अपने लंबे जो है एक्सपीरियंस से बोल रही हैं, ना केवल एपिलेप्सी एजुकेटर के एक्सपीरियंस से बल्कि एक मिर्गी के मरीज भी रही हैं। और उसके बाद वो जो कह रही हैं वो आपको किताबी जानकारी नहीं दे रही, वो बहुत Dr. Mamta, sorry to interrupt you. There are good colleagues from South India and they are also asking that English. I think 99% of our participants understand English also. So you can have an Anglo-Indian. तो अब हम अगले स्पीकर पे जाएंगे, जो कि डॉक्टर नीरा चौधरी हैं। She is the head of department, director of the Department of Neurology from Safdarjung. वो हमें ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, but we will be playing her video. So और डॉक्टर नीरा आपसे ये शेयर करेंगी कि what are the resources, आपके पास ये कौन से स्रोत हैं जिससे कि आप जानकारी अपनी बीमारी के बारे में पा सकते हैं। So Mansi, can we have Neera's video? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरा चौधरी सफदरजंग हॉस्पिटल से। आज
इस मौके पे आपको मिर्गी रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी और मैं आपसे बात करूंगी कि ये जानकारी अगर आप खुद लेना चाहें तो कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, और ये हम सबको पता ही है, कि हमें ज़िंदगी सबसे अच्छी कब लगती है। ज़िंदगी अच्छी लगती है जब सब कुछ ठीक ठाक हो, या अगर ठीक नहीं भी है और हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है, हम अपनी परेशानियों का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं, तो ज़िंदगी फिर सरल लगती है। इसी तरह से जैसे मिर्गी रोग है तो एक तो दवाइयाँ आप लेते ही हैं, मगर अगर आपको रोग के बारे में जानकारी हो, जो कि आपके डॉक्टर जब आपका ये डायग्नोसिस आपको बताते हैं उसके बारे में बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, मगर और भी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो बहुत सी जगहें हैं जहाँ से आप ये जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, हमें डॉक्टर ने सब बताया, मगर हमें फ्रीडम है और हमें रास्ता पता है कि अगर हम और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वो हमें कहाँ से मिल सकती है। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। आजकल तो सबको पता है इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो अगर हम गूगल सर्च करें और अपनी बीमारी के भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में जानना चाहें तो हमें जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ सोर्सेस का मतलब कुछ जगहें जो आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ से जिस प्रकार की भी आप अपनी बीमारी के बारे में जानकारी जानना चाहें तो आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गूगल सर्च है ये केवल अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी या जो भी भाषा में आप सर्च करना चाहें आपको ये जानकारी मिल सकती है। और दूसरी बहुत अच्छी बात है, सबको पता है कि हमें टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर हम माइक के बटन को प्रेस करें और अपनी जो भी उपलब्ध जानकारी हम उपलब्ध करना चाहते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछें तो वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और केवल लिखित उसमें नहीं, अगर हम चाहें कि हमें उसका एक वॉइस कोई बोल कर हमें बताए तो वो भी जानकारी उस तरीके से भी उपलब्ध हो सकती है। तो आज मैं आपको कुछ साइट्स बता दूंगी जहाँ से हम अपने मिर्गी रोग के अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। वो मैं एक स्लाइड में आपको दिखा दूंगी। शुक्रिया। थैंक यू नीरा। नीरा ने आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताए हैं जहां से आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। और आई अंडरस्टैंड कि ये केवल मरीजों की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स, काउंसलर्स, एपिलेप्सी नर्सेज, all of us have to feel responsible for sharing this information and empowering patients. And I acknowledge कि मैं ये मानती हूँ कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्लिनिक में अधिक मरीजों के दबाव में ये हमारे पास समय नहीं रहता है और चाहते हुए भी हम मरीज से पूरी जानकारी जो हमें उनको जरूर देना चाहिए वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। परंतु वी वुड ऑल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आगे इसको सुधारें। और मरीजों से भी मेरी ये विनती रहेगी कि आप हमें ये रिमाइंड करें कि हम आपसे जानकारी शेयर करें, that we share information with you, because it is important that all of you understand epilepsy, understand your treatments, understand treatment options, and you feel empowered as a person with epilepsy. You are not just kind of wavering in the dark, not knowing कि अगला क्या होने वाला है. So now I go on to my next speaker. Thank you very much, Neera. Thank you, ma'am. अब हम हमारे अगले स्पीकर में जाएंगे, डॉक्टर मंजरी, जो मेरी कॉलीग हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। शी इज अ वेरी वेल नोन एपिलेप्टोलॉजिस्ट। आप में से सभी लोग शायद उनको जानते होंगे, अधिकतर जानते होंगे। सो मंजरी विल बी डिलीवरिंग हर टॉक लाइव। मंजरी, आर यू देयर? हाँ, नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर ममता। और यहाँ पे सभी का मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।
देखिए, हमारे जीवन में हम सब चाहते हैं कि हम इंद्रधनुष जैसे सारे रंग हमारे जीवन में भरे हों। इसके लिए बहुत जरूरी है ये 2 बाण या ये 2 शस्त्र हमारे मरीजों के पास होना। एक है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसको अपने पेस पे या अपने गति पे चलाऊंगा, कोई भी मरीज हो वो मिर्गी का। दूसरा है, मुझे मिर्गी है तो क्या, मैं अपनी मिर्गी का कंट्रोल कर पाऊंगा सही इलाज से जो बिना नागा करे लियूं, मैं पढ़ पाऊंगा, मैं शादी कर पाऊंगा और मैं फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में जितना हो सके, जितना भी मेरी कंडीशन के साथ हो सके सेफली मैं जीऊंगा। ये एटीट्यूड और ये 2 शस्त्र होना हमारे मरीजों के पास बहुत जरूरी है ताकि जिंदगी सुखमय हो। बहुत जरूरी है कि हमारे जो मरीज हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनको ये पता हो जब दौरा आता है, जो एकदम से आता है, एकाएक आता है, उसमें सिर्फ एक सिंपल चीज करनी है, वो एक करवट देके लेटाना। क्योंकि दौरा ऐसी चीज है जो बिजली की तरह आउट ऑफ द ब्लू आता है, कोई वार्निंग नहीं होता जनरली, इसीलिए बस साइड करके लेटाना ये बहुत जानना जरूरी है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम दौरा कितने समय के लिए रहा वो हम देखें। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो हर मरीज के पास अपने डॉक्टर से लिखी होनी मिलनी चाहिए। नाक से दी जाती हैं ये दवाइयां, और नाक अगर दौरा तो ये नाक में डाल के दौरे को ये लिखवाना बहुत जरूरी है, और इनकी कितने पफ देने हैं ये भी बहुत जरूरी है। अगर नाक से न दे पाए आप मुंह के द्वारा चीक से भी ये दवाई दे सकते हैं। इमरजेंसी कार्ड में जो हमारे मरीजों के पास होना चाहिए उसमें ये डोसेज आपके डॉक्टर लिखेंगे। रिश्तेदारों को बहुत जरूरी है जानना कि अगर दौरा जिसमें हाथ पैर हिल रहे हैं 5 मिनट से ज्यादा हिल रहे हैं तो इसका मतलब है उस दौरे में मरीज का ब्रेन फायर पे है। इस कंडीशन को हम स्टेटस एपिलेप्टिक पटक रहा है मरीज तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मरीज के रिश्तेदार दौरे का वीडियो बना लें, एक और कोई हो तो वीडियो बना लें, तो उस वीडियो से डॉक्टर को बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये दौरा सच का दौरा है या ये दौरा सच का दौरा या ब्रेन का दौरा नहीं है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके डॉक्टर को मिलती है। ये बहुत जरूरी है कि दौरे के बाद जो रिश्तेदार हैं या मरीज वो दौरे की जो छोटा दौरा था या बड़ा दौरा था जो आपके डॉक्टर ने समझाया होगा कितने समय के लिए था और किन कारणों की वजह से हुआ, शराब पी या फिर सोए नहीं, वो लिख के एक सीजर डायरी या सीजर चार्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर ने दवाई लिखी है उसको आप नागा न करें, रोज लें, ये भी बहुत जरूरी है। दवाई रोज लेने के लिए बहुत जरूरी है कि केयर गिवर विटनेस करे, विच इज द बेस्ट मेथड। जो केयर गिवर है वो रोज सुपरवाइज करे कि दवाई मरीज ले रहा है या नहीं, या फिर हमारे पास अलार्म्स हो और एक चार्ट हो जिसमें हम टिक करें कि दवाई मिस नहीं हुई है। बहुत जरूरी है कि दौरे जो है अक्सर तब पड़ते हैं जब हम स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा तनाव हो, या तो बहुत ज्यादा तनाव हो या एक्साइटमेंट हो, घर में शादी हो, रात भर नहीं सोए हैं, या फिर शराब या स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो यूज हुए हो। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो मार्केट में है, सिंपल दवाइयां जैसे पेन किलर्स, ट्रामाडोल या कॉफ सिरप्स, अगर हम ये ज्यादा लेंगे तो दौरे पड़ सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप दौरे के मरीज हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ये ट्रिगर्स को अवॉइड करें, और एक प्रत्येक मरीज में क्या ट्रिगर है या क्या दौरे को बाहर कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। सोना 7 से 8 घंटा नॉर्मल लोगों को भी सोना जरूरी है, और मिर्गी के मरीजों को और भी बहुत जरूरी है कि वो नियमित टाइम के लिए सोएं। अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है आप तुरंत डॉक्टर को बताएं। वो साइड इफेक्ट हो सकता है आपके एपेटाइट पे, या फिर आपकी मसूड़ों पे, या फिर शरीर में दाने आके। ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, या अगर हमारे केस में जैसे बहुत केस में हम ईमेल दे देते हैं या
कई मरीज व्हाट्सएप पे ज्वाइन होते हैं। बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर को ये बताएं कि आपके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। गृहिणियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो है, अगर उनको खाना बनाना है तो वो ऐसे टाइम पे खाना बनाए जब घर पे लोग हैं या किचन में उनके साथ उनके रिश्तेदार कोई हैं। अगर बर्नर यूज कर रहे हैं, पीछे के बर्नर यूज करिए। हमेशा सूती या कॉटन कपड़े पहने ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। आजकल इंडक्शन कुकर्स आ गए हैं और फिर माइक्रोवेव ओवन्स आ गए हैं विच डोंट हैव फ्लेम, विच आर सेफर टू यूज। कांच के बर्तन ज्यादा ना उपयोग करें। बर्तनों को इधर से उधर एक पाइल में ना ले जाएं। आपको लेना है, आपके पास एक ट्रॉली होगी तो उससे बहुत सुविधा होगी। तो गृहिणियां खाना बना सकती हैं, पर कोई किचन में निगरानी में है तो अच्छा है, बैक बर्नर पे बनाइए जैसे हमने ये चित्रों में दिखाया है। बाथरूम में ये बहुत जरूरी है, हम अपने मरीजों को ये बोलते हैं कि बाथरूम अंदर से कृपया बंद ना करें और सिर्फ उनको उड़का दीजिए। बाथरूम में अगर मरीज को मायोक्लोनिक जग्स होते हैं सुबह सुबह उठते, तो अगर ड्राई है फ्लोर और कारपेटेड है सॉफ्ट कारपेट के साथ, जैसे चित्र में दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चोट कम लगेगी। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम टब के अंदर जाके ना नहाएं, या तो हम सिटिंग में नहाएं कंफर्टेबली, और आजकल बहुत अच्छे सीटेड बेदिंग कैबिनेट्स आते हैं। और बकेट बाथ स्टूल पे, छोटे स्टूल पे जो जमीन के पास हो, बहुत ऊंचा स्टूल ना हो, उस पे नहाएं। शावर बाथ भी ले सकते हैं। हमारे देश में पर्टिकुलरली सर्दियों में गैस हीटर यूज होता है पानी के लिए। ये बहुत खतरनाक होता है नॉर्मल लोगों के लिए भी, और जिनको मिर्गी है उनको और भी, क्योंकि गैस हीटर जो है हम बाथरूम में लगाते हैं, उसमें हम एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं गैस गीजर सिंड्रोम। इसमें जो गैस से जो पानी गर्म हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है बाथरूम में वो डिप्लीट हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बचता है। उसकी वजह से मरीज एकाएक बेहोश हो सकता है और जान भी जा सकती है। इसलिए गैस हीटर का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे मिर्गी का मरीज हो चाहे ना हो। और अगर यूज भी हो रहा है, बाथरूम का वेंटिलेशन या खिड़की खुली होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हम गिरेंगे और चोट आएगी। और अगर हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे पिलियन, तो हमारा हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। गृहिणियों के लिए जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं, अगर उनके पास स्ट्रोलर्स हैं और प्रैम्स हैं, वो सेफ रहेंगे रादर देन बच्चे को, अगर बहुत ज्यादा दौरे पड़ते हैं, बच्चे को ऐसे उठा के इधर उधर करना। अगर दौरे कंट्रोल्ड है, ये अलग कहानी बन जाती है। हेल्थ एजुकेशन, जैसे डॉक्टर ममता ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ एजुकेशन जितनी जल्दी हो सके मरीजों तक पहुंचाएं। ये पॉसिबल है हर केस में अगर हम छोटे छोटे तरीके अपनाएं। जैसे कि ये एक हेल्थ एजुकेशन बुकलेट है जो कॉमिक के रूप में है, जो हम अपने मरीजों को देते हैं। और ये कॉमिक न सिर्फ अंग्रेजी में है, बट हमारे देश में 7 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये जो कॉमिक है, ये मिर्गी के बारे में सारी जानकारी देती है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये कॉमिक भी हमारे एक मरीज ने ही बनाई है, जिसकी एपिलेप्सी सर्जरी हुई थी और वो बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन करता था, और उसने इस इंफॉर्मेशन के लिए क्रिकेट के माध्यम से मिर्गी के बारे में सही जानकारी दी है, छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी बड़ी तक। तो अगर हम इंफॉर्मेशन कॉमिक के रूप में हम अपने मरीजों तक पहुंचाएं, जो सुलभ है पढ़ने के लिए और केयर गिवर्स के लिए सुलभ है समझने के लिए, ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर मेहंदी रता, डॉक्टर ममता, सब ने टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स, इन तरीकों से इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक की मिर्गी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए एक कॉमन इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट एक पर्सन की जो मिर्गी है वो दूसरे पर्सन की मिर्गी से थोड़ी अलग हो सकती है, गंभीर हो सकती है, और इसीलिए पेशेंट का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम जनरल प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाते हैं। कई माएँ पूछती हैं कि मिर्गी के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट है। पहले जब मैं अपने MBBS को खत्म करके हमने DM किया, हम मरीजों को बोलते थे नहीं, कोई डाइट नहीं।
पर अब हमारे शोध ने पाया है, जो पब्लिश हो गया है, कि स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो, जिसमें हम बोलते हैं मॉडिफाइड एटकिंस डाइट या कीटोजेनिक डाइट। ये स्पेसिफिक डाइट्स पर्टिकुलरली जो रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, पर्टिकुलरली या तो सर्जरी से या तो दवाइयों से, उसमें ये स्पेसिफिक डाइट्स यूज हो सकती हैं। और हमारी गृहिणियों ने ये रेसिपी बनाई है, ये रेसिपी बुकलेट हमारे जो मरीज हैं उनकी माओं ने बना के हमको दी है। और ये रेसिपी सारी टाइम टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं मरीजों पे। और आपको जान के खुशी होगी कि कई मरीजों को इन स्पेसिफिक डाइट से भी दौरे कंट्रोल होते हैं। तो गृहिणियों का भी रोल है, और एक मोटिवेटेड मदर ये रेसिपीज बना के एपिलेप्सी का थोड़ा बहुत, अगर रिफ्रैक्टरी है और सर्जरी से नहीं ठीक होने वाली है, तो उसका उपाय पा सकते हैं। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम अपने ही देश में जो योगा है उसका उपयोग करें। कई ऐसी योगिक टेक्निक्स हैं जो उपयोग करके हम अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा नियंत्रण में ला सकते हैं, जो हमारी एंजाइटी को कम करेगी, जो मिर्गी के मरीजों में बहुत है, डिप्रेशन को कम करेगी, जो भी मिर्गी के मरीजों में बहुत मात्रा में होता है। इसके अलावा हमने अपने शोध में पाया है कि मिर्गी से रिलेटेड स्टिग्मा जो है, पर्टिकुलरली परसीव्ड स्टिग्मा, जो अंदरूनी स्टिग्मा है, ये भी कम होता है। तो हम अपने मरीजों को जो हमने एक मॉड्यूल बनाया है योगा का हमारे एम्स में, योगा सेंटर है, वो हम ऑफन वीडियो हम देते हैं ताकि वो ये योगा अपने आप घर पे कर पाए। वो मरीज कर रहे हैं, जो अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशन। बहुत बार हम अपने मुंह से अनाप शनाप बोल देते हैं। हमने पाया कि अगर मिर्गी के मरीज की फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी में जो फ्रेंड्स हैं, वो सही से एक्सप्रेस अपना इमोशन करें इन अ पॉजिटिव इमोशनल एक्सप्रेशन टोन, ये बहुत फर्क करता है मिर्गी के मरीजों के लिए। उनकी जिंदगी बदल सकती है अगर हम इनको पॉजिटिवली इमोशनली एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स या उनके रूटीन कम्युनिकेशन में। जैसे कि बताया गया, ये एक और चीज़ है जो अभी डेवलपमेंट में है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम ऑफिस में है अभी पड़ी हुई ये चीज़, जिसमें हमने एक डिवाइस बनाई है जिसमें पेशेंट का प्रोफाइल होता है, उसका वीडियो भी ले सकते हैं, और उसकी डिटेल्स हैं इस प्रोडक्ट पे। और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल शॉर्टली फॉर पीपल विद एपिलेप्सी ऑन देयर मोबाइल्स एंड कैन बी यूज्ड। So these are the various ways. ये अलग-अलग तरीके हैं जिसमें can you please wind up? ये अलग-अलग तरीके हैं जिसमें हम मरीजों को की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल मकर संक्रांति थी और उस अवसर पे बहुत लोग छत पे चलते हैं, और ये बहुत जरूरी जानना कि हमारे देश में बहुत सारे मिर्गी के कारण हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, और उनमें से एक ये है कि जो छत पे लोग चढ़ के पतंग उड़ा रहे हैं या फिर गिर जाते हैं एकदम से, उससे भी मिर्गी होती है, which is preventable. So all these things can be done by us to empower ourselves, to make ourselves control our condition better, with the attitude that yes, I have epilepsy, so what? And I will live my life in my own pace. Thank you. Thank you, Dr. Manjari. Dr. Mamta, we have to be conscious of time also. Yeah, and there are large number of questions in the chat box. Yeah, but sir, I will try to hurry up for the rest of the program. Manjari. No, don't hurry up. Let everybody have a chance, but they can shorten their talk. Sure, sir. So, बाकी की talks इतनी लंबी नहीं है, so don't worry. We will hopefully be able to cover the rest. Thank you, Dr. Manjari. अब अगला जो हमारा स्पीकर है, मेरे ख्याल से मरीजों के लिए वो इस पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लगभग 20 सालों से मरीज या 20 से भी ज्यादा सालों से मरीजों से मिल रही हूँ, उनका इलाज कर रही हूँ, और जो एक व्यथा मेरे ख्याल से हर मरीज और मरीज के अभिभावक, वो उनके माँ बाप हों या जो भी हों,
उनको सताती है वो ये होता है कि क्या हमारे मरीज की शादी हो सकती है कि नहीं। तो दिस इज अ वेरी परपेचुअल प्रॉब्लम विद ऑल पेशेंट्स, एंड मेरे ख्याल से मरीजों का इसमें बहुत ज्यादा रुचि है और बहुत ज्यादा उनका इसमें इंटरेस्ट है। सो मानसी, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग। डॉक्टर यशोदा, मैडम यशोदा जो है वो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन उनका टॉक जो है वो रिकॉर्डेड है। हम उनसे उनका टॉक आपको रिकॉर्डेड प्ले करेंगे, और जो इस सेशन के अंत में वो अवेलेबल है, आप उनसे अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे। सो मानसी, प्लीज प्ले डॉक्टर यशोदा, मैडम यशोदा's talk. मानसी, यशोदा की टॉक प्ले करिए। I'll also like to highlight here, Yashoda runs a marriage bureau in Pune, and she has helped number of people, those who are married or got separated, whether men or women. She had been very instrumental in helping these people. Mansi, can you start? Otherwise, Yashoda can online say a few words. मानसी, आप प्लीज यशोदा की टॉक प्ले करिए। Yeah, it's coming. Hello everyone. Thank you for inviting me Indian Epilepsy Association's meeting. तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये बताना है कि शादी करने से मिर्गी के दौरे बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। ऐसा कोई नहीं है कि शादी करने से सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए शादी बहुत दूर की बात है। पहली तो स्टेप है ट्रीटमेंट। पर हमें ये विश्वास करना चाहिए कि शादी करने से मिर्गी के दौरे कम नहीं होने वाले हैं, पर ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट से पहले एपिलेप्सी के बीमारी कम करनी है, कंट्रोल में। विद एपिलेप्सी हमने देखे हैं जो खुद का प्रॉब्लम ही एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि हाँ मुझ में कुछ कम नहीं, हाँ मुझे कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ नॉर्मली चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा जब रहता है। और किसी ने उनको एपिलेप्सी के बारे में अच्छी तरह से भी पूछा तभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे हमने आज तक बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, पीपल विद एपिलेप्सी देखे हैं। इसीलिए हमें हमेशा लगता है कि एक्सेप्टेंस तो इम्पोर्टेंस, खुद के लिए एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट है ही, पर खुद के लिए जब स्पाउसेस ढूंढते हैं तभी भी एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि ये जो लड़के रहते हैं जिनको एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें जो अभी जो स्पाउस देख रहे हैं उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें सब कुछ नॉर्मल चाहिए, उसमें सब अच्छा ही चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है ये सोसाइटी में। आप सोचिए कि अभी यदि आप नॉर्मल मैरिज ब्यूरो में जाएंगे और आपका नाम रजिस्टर करेंगे तो नहीं कोई एक्सेप्ट करता है। ऐसे बहुत लोग ट्राई करते हैं जिनको एपिलेप्सी की बैकग्राउंड रहती है, वो बहुत लोग जाते हैं नॉर्मल मैरिज ब्यूरो में, उनका नहीं एक्सेप्ट होता है। तो हमें खुद में भी वो एक्सेप्टेंस चाहिए कि हमें एपिलेप्सी है और हमारे वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अरेंजिंग दिस मैरिजेस। ऐसे ऊपरी एक्सपेक्टेशंस पे मत जाओ। हमें क्या करना है, जैसे मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि काउंसलिंग की जरूरत रहती है। उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लड़का और लड़की दोनों को भी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स का भी करते हैं, और उसमें सब ये हम ढूंढते हैं कि उनका नेचर कैसा है ये देखना चाहिए, उनके लाइकिंग्स क्या है ये देखना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी जीने की जिगर क्या है ये देखना चाहिए। तो ये सब चीजें रहते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस में आने चाहिए। तो हम हमेशा हमारे यहाँ आने वाले लड़का लड़की उन सबको बताते हैं कि कलर, बाल, नाखून, इसके ऊपर मत जाओ, ये सब ऊपरी चीजें हैं बारे में कह रहे हैं। पर आपने नॉर्मल मैरिजेस देखे तो उसमें भी एडजस्टमेंट तो रहता ही है। ऐसी कोई भी शादी नहीं है कि जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है। यदि किसी ने आपको बताया कि हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो समझो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के सिवा सक्सेसफुल मैरिज नहीं होता है। तो एपिलेप्सी के बारे में भी एडजस्टमेंट क्या रहता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी हमको मालूम है कि हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन प्रोबेबली लेना पड़ता है या कई साल तो लेना पड़ता है। तो ये जो रिलेशन बन जाता है अच्छा रिलेशन,
तो एपिलेप्सी के साथ वो एक्सेप्टेड रिलेशन रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ संवेदना फाउंडेशन के थ्रू जो शादियां हुई है वो हमेशा शेयरिंग करते हैं, वो एक दूसरे को मेडिसिन लेने के लिए रिमाइंड करते हैं। तो वो एक तरह से प्यार ही रहता है ना, एक दूसरे को रिमाइंड करना, ये भी होता है। और दूसरा ऐसा होता है कि यदि हमने कहा कि दोनों के मिर्गी के दौरे पूरे कंट्रोल में है, तभी भी हमें मालूम है कि ये फिर भी कभी मिर्गी का दौरा आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। वी डोंट नो व्हेन विल गेट द सीजर अगेन। सो किसी को यदि शादी के बाद कई रीजन से एपिलेप्सी की फिट आ गई, तो दूसरा जो स्पाउस जो है वो बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर लेता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा रहता है और वो सब ये एडजस्टमेंट में आता है। हमारे यहाँ एक जो कपल है उनकी शादी हुई थी, अभी उनकी शादी को भी 7-8 साल हो गए, उनको एक अच्छी बेटी भी है। तो वो दोनों कंट्रोल्ड एपिलेप्सी के साथ जी रहे थे। तो वो जो उसमें जो हस्बैंड है उसको एक दिन बहुत बड़ा मिर्गी का दौरा आ गया, उसकी वाइफ उसको लेके हॉस्पिटल गई, उनको एडमिशन हुआ, सब हुआ, वो सब ठीक हो गया। पर उसके बाद वो वाइफ हमारे साथ शेयरिंग कर रही थी कि ये सब होने की वजह से वो बहुत नजदीक आ गए एक दूसरे को, क्योंकि कभी किसी को कुछ होता है और अच्छी तरह से एक दूसरे का देखभाल करते हैं तो रिलेशन ये ज्यादा बिल्डअप होता है। और आपको कुछ शंका है तो आप हमें जरूर ईमेल कर सकते हो contact@samvedana.org पे, या हमें फोन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन, थैंक यू। आई एम वेरी श्योर, मैं जरूर ये समझती हूँ कि आप सबको यशोदा की बातें बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगी होंगी। और यशोदा जो है वो एक फाउंडेशन है, संवेदना फाउंडेशन, उसके साथ शी इज कनेक्टेड। और एक एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो जो है वो उसको रन करती हैं पिछले कई सालों से। और लगभग 30-32 जो है कपल्स को वो मैरिज में शी हैज हेल्प्ड देम गेट मैरिड। तो हम इनफैक्ट यशोदा से इस मीटिंग के पहले ये चर्चा कर रहे थे कि प्रोफेसर मेहंदी रतौर में कि क्या आप दिल्ली में भी इस किस्म का कुछ प्रोग्राम रन कर सकती हैं। तो मैं यशोदा की बातों से बहुत ही सहमति अपनी व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैं मरीजों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आप पूरे अपने पैसे एक जगह पे तो नहीं रखेंगे, आप उनको जगह जगह पे 2-3 जगह पे कम से कम बांट देंगे। क्योंकि अगर किसी ने आपका फॉर एग्जाम्पल बटुआ छीन लिया, पर्स छीन लिया, तो कुछ और पैसे तो आपके पास रह जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि शादी जो है ठीक है, अहमियत है उसकी, लेकिन किसी की जिंदगी की पूरी अहमियत शादी सक्सेसफुल है या नहीं इस पे मत प्लीज डालिए। क्या इंसान की कोई और वक्त नहीं है? शादी सक्सेसफुल नहीं हो तो उसके बाद इसका मतलब उस इंसान की जिंदगी यूजलेस है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए, इस काबिल बनाइए कि वो अपने पाँव में खड़े हो सके। उसके बाद शादी होती है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेकिन नहीं भी होती तो क्या? इज दैट अ टोटल फेलियर ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस? आई डोंट थिंक सो। तो आप इसके बारे में सोचिए। एंड नाउ बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम, आई इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट स्पीकर, जो कि हैं मैडम शैली गांधी। शैली गांधी भी मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रही है। I have not seen a more sincere worker than Shelly. Shelly जो है वो मरीजों को बहुत सहायता करती हैं, और शैली थोड़े समय तक खुद भी एपिलेप्सी से ग्रसित थी। तो इनके विचार क्या हैं ये हम सुनते हैं। शैली, मानसी, कैन यू प्लीज शेयर शैलीज वीडियो? हाय एवरीवन, मेरा नाम शैली है और मैं पिछले 10 साल से डॉक्टर ममता और एक्शन एपिलेप्सी के साथ एपिलेप्सी एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। पहले मैं एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था,
मेरा एपिलेप्सी में इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने फैमिली में देखा है, मेरे फादर ओवर 40 इयर्स से वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे थे और मेरे को भी कॉलेज के दौरान 2-3 बार दौरे आए, लेकिन मैं नॉर्मल जैसे मेडिसिन लेके वापस कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा था कि मैं आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड या ऐसा कुछ होगा, कोई इतना प्रॉब्लम था एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था। इट इज़ ओनली कि जब मैं लाइफलाइन के क्लिनिक्स में डॉक्टर ममता और प्रिया के साथ गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हम लोग के पास तो सब डॉक्टर्स का एक्सेस होता है, मिल जाते हैं, मेडिसिन सारे मिल जाते हैं, तो और फैमिली में ऐसा कोई स्टिग्मा वगैरह भी मैंने देखा नहीं था। तो जब मैंने देखा कि पेशेंट्स के लाइफ में एक्चुअली रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग रहा। शुरू के क्लिनिक्स तो एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग रहे। कुछ पहले क्लिनिक्स में जब मुझे पता चला कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है अगर उनको दौरे आते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट्स मिले जो बिना मेडिसिन के उनके बॉडी पे बहुत सारे बर्न्स हो गए, या कोई लेडीज़ है उनको फैमिली से निकाल दिया जाता है बिकॉज उनको सीजर्स होते हैं और उनके पास दवाई नहीं होती। तो जब इस तरह के इंस्टेंस देखे तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा। पर्सनली बिफोर जॉइनिंग दिस वर्क मैंने ये सोचा था कि हमारे यहाँ एपिलेप्सी के बारे में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। मैं खुद एज अ केयर गिवर जब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था तो मैं इंटरनेट पे जाके केयर गिवर्स गाइड कहीं का USA या UK का या जर्मनी का डाउनलोड करके हम लोग पढ़ लेते थे आपस में, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन का कम था। और कंपेयर टू दैट क्योंकि मैं एज अ मार्केट रिसर्च एग्जीक्यूटिव मैं डायबिटीज़ पे काम कर रही थी, तो वहाँ मेरे को मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था। डायबिटीज़ फोरम में मैं जब जाती थी तो वहाँ पेशेंट्स, उनके फैमिलीज़ डॉक्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो एपिलेप्सी के लिए तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन था, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन लाइफलाइन के बाद जाने के बाद मुझे पता लगा कि पेशेंट्स के रियल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो हम यहाँ फेस करते हैं उससे ज़्यादा। मेडिसिन की रेगुलर कॉस्ट, डॉक्टर कोई आसपास होते नहीं हैं तो आप एक बार डॉक्टर से मिलाते हैं फिर सालों साल डॉक्टर से आप मिल नहीं पाते हैं, मेडिसिन रेगुलरली मिलती नहीं हैं, कई मेडिसिन पेशेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, तो वो रेगुलरली पर मंथ उनके लिए उतना मेडिसिन अफोर्ड करना, प्लस उनको ये लगता है कि जैसे ये अंडरस्टैंडिंग कि इसका ट्रीटमेंट शायद लाइफ लॉन्ग चले, ये अभी भी मैं फेस करती हूँ कि कैसे किसी को एक्सप्लेन करें कि कई लोगों के सीजर तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे या साल में, और कई के लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलेगी। तो ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जैसे मुझे याद है जब हम एक बार कर्नाटका में शायद कहीं पे एक बार लाइफलाइन गया था तो वहाँ पे एक फार्मर थे, वो अपनी वाइफ को लेके आए। वो बहुत ही इनकरेजिंग स्टोरी थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स से उनकी वाइफ को एपिलेप्सी थी और वो बहुत सिंपली ही जस्ट केम एंड ही जस्ट शोड कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड ही वॉज वेरी मतलब कैजुअल नहीं, मतलब ही वॉज वेरी कि ठीक है दवाई लेती हैं और ठीक है, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं और सब ठीक है। तो रेगुलर मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट होता है कि पेशेंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्लिनिक में मुझे आज तक याद है, वो मेरे से बेसिकली हम कई बार मैं साइड में ऐसे खड़े होकर कुछ वीडियो फोटो ले रही थी तो वो मेरे से एडवाइस ले रहे थे कॉलेज के लिए हमें क्या करना चाहिए एंड ऑल। तो मैंने उनसे बात किया तो पता लगा कि उनकी मदर एक्चुअली फार्म लेबर है, लेबर के तरह काम करती है और दोनों को सीजर्स आते हैं। तो मैंने फिर उनकी मदर से बात किया कि नॉर्मली हम जो देखते हैं तो पेशेंट्स तो या तो ट्रीटमेंट छोड़ देती हैं या बच्चों को स्कूल उनकी एजुकेशन छोड़ देती है। तो उनकी मदर ने सिंपली कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मतलब मेरा वर्ड रॉन्ग, कि उनके पास ऐसा कोई सहूलियत नहीं थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत यंग ही, जब दोनों बच्चे छोटे थे, और फिर
वो घर नहीं रुक सकती थी बच्चों को देखने के लिए, तो उनको जो दवाई बताई गई उन्होंने वही दी, और उन बच्चों की दवाई मतलब तब से वो चला रही है, और वो बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए रेडी है, एब्सोल्युटली रेडी है। वो अभी भी उन लड़कियों को, वो जब लाइफलाइन में आई थी कभी कभी सीजर्स आते हैं, बट दे आर रेगुलर विद देयर मेडिसिन, और वो आगे जाके बहुत उनके प्लान्स थे, वो डिस्कस करी थी वो क्या करना चाहते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि बेसिकली अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन बेटर हो, पेशेंट्स को बहुत जगह जाते हैं इन द होप कि 100% ठीक हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन की कई पेशेंट्स में 100% ठीक हो जाएगा, कई में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, इसका कोई उनको अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन या कोई मिल जाए तो शायद उनके एक्सपेक्टेशन थोड़े रियलिस्टिक हो जाए। नहीं तो वो 100% गारंटी में बहुत कि कहीं से ट्रीटमेंट मिल जाए, कहीं वो कहीं पैसा, कई बार मैंने देखा ऐसे पेशेंट्स वो साइड होके जब डॉक्टर से मिल लेते हैं उसके बाद साइड होके बताते हैं हम तो इतने पैसे यहाँ दे आए किसी को, या इतने पैसे उसने ले लिए। तो यही पैसे अगर वो रेगुलर मेडिसिन में स्पेंड करते तो शायद धीरे धीरे उनके सीजर कम भी हो जाते। लेकिन क्योंकि कोई 100% गारंटी नहीं होता है इस ट्रीटमेंट में, तो ये पेशेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह का अगर कोई हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन हो जाए तो बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू। शैली, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। तो शैली जो है वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैं लगभग 20 साल से मरीजों के साथ काम कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से शैली जितनी ज्यादा डेडिकेटेड काम करने वाले आज तक मुझसे नहीं मिली। तो शैली, गॉड ब्लेस यू। और इसके बाद फाइनली, क्योंकि हम प्रोग्राम जो है हमारा थोड़ा लेट हो गया है, तो हम फाइनली जो आखिरी स्पीकर है उनको इनवाइट कर रहे हैं। उनका भी वीडियो हमारे पास है, वो बहुत ही छोटा है, 2-3 मिनट का वीडियो है। वो रौनक है। रौनक हमारे पास एपिलेप्सी नर्स के जैसे काम कर रही थी। उन्होंने मरीजों के साथ बहुत ही सहूलियत से काम किया, मरीजों को मदद करी। और जो मानसी, can we have Ronak's video now, please? Mamta, can I just say a few words about what Shirley said? Absolutely. Please go ahead. Mansi, can you pin me on this screen? Yeah. I had 2 years interaction किया हम लोगों ने जापान के पेशेंट के साथ, people with epilepsy in Japan Epilepsy Society, and उसमें और पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और नेपाल से। और उन सब की जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनकी भी वही वैसी प्रॉब्लम थी लगभग, पर से सॉल्व करना। ट्रीटमेंट गैप वहाँ कम है, जैसे शैली ने कहा, इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल है, और इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन रेगुलरली इसका प्रयास कर रही है और प्रयत्न कर रही है, continuously trying to help people with epilepsy to know more about this disease and how to get remedies from this and how to get information about this. So I'll stop it here and request Ronak to present. अब रौनक के प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, लास्ट प्रेजेंटेशन है। लेकिन क्योंकि अभी सब लोगों की नजरें प्रोफेसर मेहंदी रत्ता, डॉक्टर मीना गुप्ता के ऊपर हैं, तो शायद यही सही समय है मेरा उनको कॉर्नर करने के लिए कि मैं उनसे ये कमिटमेंट लूं कि हम दिल्ली के जो चैप्टर है उसके जरिए हम हमारे दिल्ली के मरीजों को और ज्यादा सहूलियत, सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, और मरीजों को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने फीडबैक से हमें बताएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम उनके उम्मीदों पे खरे उतरें। इज दैट राइट सर? ममता, वी नीड टू, हाँ, हमें और ये प्रोग्राम करने हैं। 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है। पहले हम एक केवल सब प्रोग्राम, मतलब मैं केवल इन वेबिनार्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जमीनी सतह पर आके मैं मरीजों के साथ हम क्या उनका बेहतर उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका भी मैं उसी पे आ रहा था। जैसे डॉक्टर मंजरी ने दिखाया कि हैंड आउट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनना, बहुत सारे 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके आंसर देना, दिस इज व्हाट यू आर एट ग्राउंड लेवल। एंड 14 फरवरी को एक इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करें,
और हम लोग क्या है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन फ्री अवेलेबल है। हम लोग आपको इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के माध्यम से अवेलेबल है। जब आप क्वेश्चन करेंगे हम उसका सब आंसर देंगे। और जहां तक जुड़ने की बात है, सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो एक बार कोविड-19 ओवर हो जाए, हम इन पर्सन मिलना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मेरे कुलीग आपने किया, डॉक्टर ममता ने किया, डॉक्टर मंजरी ने किया एक्सटम के थ्रू, डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर गीता ख्वाजा रेगुलरली करती थी जीबी पंत में। मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम जीबी पंत में, जनकपुरी में किए, जहां पेशेंट के साथ इंटरेक्शन 1:1, और ऐसा करते थे 10 पेशेंट है। हम लोग पेशेंट कहना अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं पीपल विद एपिलेप्सी। पीपल मीन दे आर, यू आर लाइक अस, यू आर लाइक एनी अदर पर्सन। और उसमें सब यही डिस्कस करते थे, 10 पीपल विद एपिलेप्सी के साथ एक फैकल्टी मेंबर, ताकि वो उनकी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। डॉक्टर ममता, आई थिंक विल गो टू रौनक एंड देन लेटर। देयर इज सम माइक ऑन, आई डोंट नो। Yeah, Dr. Mamta, you are muted. Mamta ji, you are muted. Everyone who's not speaking, please switch off your mics. There's a lot of noise. Ma'am, I've done that for them. Yeah, thank you so much. So we go on to the last and final speaker of the evening. तो ये पैंडेमिक की हमारी सीख है, क्योंकि पैंडेमिक में हम अधिकतर मरीजों से फिजिकली नहीं मिल पा रहे थे। तो रौनक जो है, शी वाज अ वेरी ब्राइट एपिलेप्सी नर्स, जो कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उन्होंने एक स्टडी करी थी ये देखने के लिए कि क्या डिजिटली पेशेंट्स को हम एजुकेट या अवेयर कर सकते हैं। तो अब हम जो है, मानसी, कैन वी प्लीज शेयर रौनक्स प्रेजेंटेशन? गुड इवनिंग, मेरा नाम रौनक है और मैं प्रेजेंटली एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ एम्स दिल्ली में। तो जब कोविड आया तब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज था कि हम पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को कैसे एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि पेशेंट एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल केयर का। तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ के लिए एक डिजिटल एजुकेशनल मटेरियल बनाया था, जो कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में था, जिसे पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स के साथ शेयर किया गया था, ये देखने के लिए कि अगर हम डिजिटल माध्यम से पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं तो क्या वो इफ़ेक्टिव पाया जाता है उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए। तो हमने ये पाया था कि अगर डिजिटली पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को एजुकेट करते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव पाया जाता है उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ हमने एक ग्रुप में क्या किया था कि ये डिजिटल एजुकेशनल मटेरियल देने के साथ साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी किया था, जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से था, जिसमें पेशेंट्स और केयर गिवर्स ने अपने डाउट्स भी क्लियर किए थे और उन्हें एजुकेट भी किया गया था। तो इससे हमें यही पता चला कि अगर हम डिजिटली एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को, तो वो भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, और ये किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि पेशेंट्स हमारे पास आएँ और हम उन्हें 1-to-1 बेसिस पर एजुकेट करें। तो इसलिए डिजिटल टूल्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव तरीका है जिससे कि पेशेंट्स और केयर गिवर्स को एजुकेट कर सकते हैं, और ये किया जाना चाहिए। और क्योंकि ये एक नया तरीका था, डिजिटल माध्यम से पहले कम ही इसका पहले इस्तेमाल किया गया है, तो पेशेंट्स और केयर गिवर्स ने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था इसमें। और पर कुछ परेशानियां जिनका हमें इस दौरान सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक डिजिटल माध्यम था तो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज की प्रॉब्लम आ जाती थी, पर अल्टीमेटली सब कुछ मैनेज हो गया था। और ये तरीका जो हमने यूज़ किया था, मतलब डिजिटल माध्यम से, इसको पेशेंट्स और केयर गिवर्स ने काफ़ी एक्सेप्ट किया था। और ये भी हमने देखा कि इससे उनकी जानकारी भी काफ़ी बढ़ी थी पहले के मुकाबले, यानी कि जो चीज़ें उन्हें नहीं पता थी वो उन्हें पता चली थी, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बीमारी को हैंडल और मैनेज कर पा रहे थे ये डिजिटल एजुकेशन मिलने के बाद में। तो कोविड से हमने यही सीखा है कि हम डिजिटल टूल्स
को यूज करके केयर गिवर्स और पेशेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, और ये किया भी जाना चाहिए ताकि इम्प्रूव कर सकें हम हमारे आउटकम्स को। और साथ ही साथ पेशेंट्स और केयर गिवर्स एजुकेट अगर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बीमारी को मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू रौनक। तो रौनक ने बस हमें ये बताया है कि डिजिटल अगर हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन की वेबसाइट पे रौनक ने जो डिजिटल मटेरियल इस्तेमाल किया है मरीजों को एजुकेट करने के लिए, वो मैं वहां पे पोस्ट कर दूं, जिससे कि मरीजों को उसको फ्री एक्सेस मिले और वो अपने आप वो मरीज जो है उसको एक्सेस करके अपनी जानकारी बीमारी के बारे में बढ़ा सके। और फाइनली मैं केवल 1 मिनट लेकर के ये बोलना चाहूंगी कि स्पेशली शादी के विषय में, कि यशोदा ने जैसे बताया कि आप अपनी फलाना इस किस्म से शादी अपनी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने मरीज या उनके अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि जिंदगी का जो बी ऑल एंड ऑल, यानी कि आपका अंतिम जो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम शादी करा लें तो हमारे बच्चे की जो है जिंदगी सफल होगी। ये आपको किसने बताया है? तो आप जो है कृपया करके अपने बच्चे को इस काबिल बनाएं, बच्चा या बच्ची, कि वो अपने पांव पे खड़ी हो सके। उसके बाद उसकी शादी करें, वो सफल होती है, भगवान करे सफल हो, नहीं भी हो तो वो इस लायक हो कि अपने पांव पे खड़ी हो सके। उसकी ज्यादा जरूरत है, ना कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट की शादी करेंगे और वो अच्छी हो गई तो जिंदगी सफल है, नहीं तो प्लीज कंसिडर योरसेल्फ अ फेलियर। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिसनर्स या अटेंडीज या हमारे मित्र लोग जो ये अटेंड कर रहे हैं, ये समझे कि क्या जिसको मिर्गी नहीं भी होती है तो क्या 100% शादियां सफल होती हैं, और सफल नहीं होती तो क्या हम उस इंसान को बोलते हैं कि जिंदगी में एकदम फेलियर है और उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? तो मिर्गी के मरीज के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? तो मिर्गी के मरीज की मर्जी है, शादी करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, लेकिन सबसे पहले अपने पांव पे खड़े होने की काबिलियत डेवलप करे, प्लीज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके साथ हमारे प्रेजेंटेशंस तो खत्म हो गए, तो प्रोफेसर मेहंदी रता सर, विल यू प्लीज टेक ओवर? जो लोगों के प्रश्न हैं आप जिनसे भी पूछना चाहें आप पूछें। थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता। आई अग्री विद यू कि मैरिज बहुत डिबेटेबल चीज है, पर हमेशा डिबेटेबल नहीं होती। इट्स नॉट ऑलवेज डिबेटेबल, एंड वी लेड टू मच stress, I think too much stress on marriage, which some people may face, everyone. So with this, I think there are a number of questions. Mamta, you can also read one by one. Some of the questions I have answered, but before that, I'd like my president, Dr. Meena Gupta, to say a few words, because she had been also organizing social programs for people with epilepsy and their caregivers. And we have done together in GB Pant, and we also brought out a booklet. Professor Meena Gupta, please unmute yourself, ma'am. Yes, thank you, Dr. Mamta, for I will pin you, ma'am, for an excellent workup. और आप लोगों ने स्पेशली इतनी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिकली हैंडल करते हुए दिखाया है। जो भुक्तभोगी हैं, एक्चुअली राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वी हैव कम टू नो कि व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी इम्प्रोवाइज टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जैसे ये जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं हमारी मिर्गी की प्रॉब्लम के, दे आर राइट, they start right in the beginning. जो छोटा बच्चा है या स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो कितना प्रॉब्लम्स फेस करता है, डूज एंड डोंट्स फेस करता है, जो उसको उसकी बेड़ियां बन जाते हैं, और उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, that comes down, that I'm not able to do ordinary things. I cannot play, I cannot
स्टडी फॉर लॉन्ग, और बहुत लोग तो जो ऑर्डिनरी हमारी डाइट है उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑर्डिनरीली. सो वी हैव ट्राइड एंड एवरीबडी इज ट्राइंग कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, दे शुड हैव अ नो हाउ as to how to deal with a epileptic child. पहले ये होता था कि उनको एडमिशन भी नहीं मिलता था. मिर्गी पहले तो डिस्क्लोज ही नहीं करते, और बाय चांस अगर क्लास में पड़ गया दौरा, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बच्चों में ये थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो the child would be asked to sit at home till the child is cured. ये चीजें शायद आज के जमाने में कम होती हैं. तो with better treatment, with better education, with better awareness, तो the education system, जो हमारे जो educative people हैं, they also should be enrolled in a very big way so that they can impart the citizens of tomorrow how to manage, how to deal, how to empathize with a child or a person who is suffering from epilepsy. So it should not be under the covers. And one thing is most important कि मिर्गी सिर्फ मिर्गी नहीं है कंट्रोल करना. मिर्गी के साथ इतनी सारी चीजें associated हैं which we have to bring out, और वो डिस्कस होनी चाहिए. जैसे आप सब का endeavor रहा है कि डिस्कस कर रहे हैं. We should not put them under the carpet. We need to discuss, and we need to improve the self-esteem of an individual, the independence of an individual. The overprotection should go. And of course, empathy and compassion are integral part. पर ये नहीं है कि हम उसको बहुत सुविधा दें, नहीं, ये तो काम नहीं करेगा, ये तो ये नहीं करेगी. And as highlighted, कि शादी से क्योर नहीं होता. बहुत पहले की बातें हैं ये कि भाई इसकी शादी करा दो, दौरे बंद हो जाएंगे. नहीं. और ये एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें बहुत जरूरी ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ मिर्गी की बीमारी है या मिर्गी के अलहदा दूसरे दौरे हैं जिसकी वजह से वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. So I'll stop over here because there's so much to talk and we've heard so much also from the learned speakers that I'll hand over the floor to Dr. Mehendee Ratta. Thank you. Thank you so much, ma'am. Appreciate your comments. आपने बहुत वैल्यूएबल बातें करी. आपने जैसा का बहुत कुछ बात करने को है, पर टाइम की कमी है. हम 6 बजे बंद करना चाह रहे थे, पर हमारे जितेंद्र जी ने औरों ने लिखा नहीं, अभी मत रुकिए, अभी चलते रहिए. हमें आप सबसे इंटरेक्शन का टाइम मिल रहा है. प्रोफेसर मंजरी हैं, प्रोफेसर ममता हैं, और प्रोफेसर गगनदीप हैं, प्रोफेसर वेंगमा, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, प्रोफेसर थॉमस इज देयर, who was the president of Indian Epilepsy Society before me. So we had large number of ambassadors who are here. Not in that sense ambassador, but ambassador in India. We also have Carol D'Souza from Mumbai. Carol, will you like to say a few words before I give the other panel question to Dr. Gagandeep and Dr. Manjari? Dr. Carol, are you around? Yes, doctor, I am. Yeah. Can you say a few I'm not words? well. Okay. So I'll pass for now. Okay. We wish you comfortable time and speedy recovery. Thank you, Carol. Saying hello Thank you. is also sufficient. Hello. Thank you. And now there are a lot of questions. There are around. First thing I would like to say that there had been attendees from Kashmir to Kenya, from Chennai to Casablanca. No, I'm saying later you put okay. Carol, can you just mute? Yes, so we had from Kashmir to Kenya. Yes, sir, 8 minutes, sir. Chennai to Casablanca. Yeah. सर मैंने आपको एक मैसेज भेजी, प्लीज उसको आप बोलते हुए प्लीज जरा सा ध्यान दे. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. So nice of you. So what I want to ask, there are a lot of questions about COVID-19 and vaccination.
can I ask our friend, Professor Vengama, what is the effect of COVID on epilepsy? As such, whatever this, am I audible? Because my net is very weak. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are welcome, Dr. Suresh, President, IEA Bangalore chapter. Thank you. Yeah, ma'am. Ma'am Vengma, please. Actually, epilepsy with the COVID, as such, it doesn't have a special this one, but only thing, COVID patients may have a fever that could trigger definitely the epilepsy, and there are people with epilepsy that definitely do get vaccinated as per the schedule, as without, because there are many people when come and ask me, because when we say epilepsy they are not vaccinating, but it's not a contraindication for the vaccination. And during the COVID time, they should continue to take their drugs as such. And in our practice, what we have seen, if people with epilepsy who had COVID, there was no increase or frequency of the seizures have been noticed. That's why only sometimes part of the fever, they may trigger the attack. But with that precaution of symptomatic treatment with the paracetamol, those things should be okay. But they should continue to take their own drugs. Maybe having epilepsy for the fever, they should avoid one of those antibiotics like quinolones and sometimes cephalosporin group of drugs, other cephalosporin group of drugs. Otherwise, as such, COVID, as such, with the literature has no impact for epilepsy for a primary idiopathic. Symptomatic, yes, with the COVID, there are a lot of thrombotic issues, strokes are common. They can get an acute symptomatic seizures as a second, but epilepsy per se, I feel there is no definite impact on that. Thank you. Thank you, ma'am. Again, to re-emphasize this point, I would like to ask Dr. Sanjeev Thomas. Sanjeev, will you like to speak in Hindi? Sanjeev, Sanjeev has worked so hard. The sky is coming on the background. He has worked very hard. Can I ask everyone to mute the mic? Sanjeev, can you mute your mic? Is it from your side? There's a lot of, yeah, it was from your mic. So there is, Sanjeev has worked so much on women and epilepsy. He is like an international authority on that. So women are usually more discriminated than men. Sanjeev, just two-liner message from you because we are short of time. But interesting thing is there were 240 participants and still 77 are staying back to listen more from the experts. Sanjeev, two-liner, please. It was a wonderful session, and I learned that the emphasis of the IMA this year is talk about epilepsy, speak out about epilepsy. I think that's very important from a women with epilepsy viewpoint also. Because they do not disclose, there is considerable problems at work, at studies, college, and family and employment. So my suggestion is that we have to learn to speak out and say that I have epilepsy, I am taking treatment, I am doing well, or I am not so well. This will improve our status and our acceptance in the society, respect to ourselves. So my suggestion is that we learn to express ourselves and talk about epilepsy in public. Thank you, Sanjeev. Can you mute yourself? It appears you are with Elon Musk on the NASA space station. There are a lot of sound coming on the background. I don't know why. So thank you so much. That was very, very, very interesting. Can I request Dr. Gagan and Dr. Manjari one-liner? Most of the questions are one-liner, not too long. Gagan, again, Dr. Vengma has said, but most of the people are asking about that COVID vaccination if they are known person with epilepsy. One-liner and then one-liner, Dr. Manjari. Yeah. COVID vaccine should go
and it should be taken just like any other person. So people with epilepsy are no exception, and there is no reason why they should not get the vaccine. Absolutely. Okay, thank you so much. Dr. Manjari, one liner. About the COVID vaccine, sir? Yeah. So that people will have more emphasis on this and impactful. Yeah. देखिए, ये हमारा नहीं, ये विश्व भर में इंटरनेशनल लीग ऑफ एपिलेप्सी अगेंस्ट एपिलेप्सी और हम सब इनका मत है और हमारा भी ओपिनियन है कि जो बेनिफिट्स हैं वैक्सीन के वो बहुत जो हार्म है या हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा है एपिलेप्सी के मरीजों में, तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन लेते हुए ध्यान देना है कि जिस दिन आपने वैक्सीन ली है उस दिन भी आप अपनी एपिलेप्सी की दवाई मिस ना करें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, चलो आज दवाई नहीं लेंगे, तो दौरा आ सकता है और आपको लगेगा ये वैक्सीन की वजह से हुआ। तो बहुत जरूरी है कि मरीज दवाई ना मिस करे। और जिनके दौरे कंट्रोल नहीं है, जिनको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, उनके तो वैसे भी आते रहते हैं। फीवर होगा तो क्रोसिन लीजिए, उससे फीवर कम हो जाएगा, और हाइड्रेट करिए अपने आप को, वैक्सीन मिस नहीं करना है। Yeah, that's very nice. So the day you are going for vaccination, take your medicine before going. And if there is a fever or you feel, you can take a paracetamol even if you don't have fever, because a lot of people do advise. So I will ask Parampreet and Dr. Ravi Nayak and also Dr. Ashok Kumar to read a question. There are questions in the chat, and Dr. Bansal. They can answer on their own one by one. But before that, Dr. Piyush Shah, Madam Praveena Shah is a very, very senior neurologist and epileptologist. She is the ambassador of epilepsy as well as social award winner. So, Dr. Praveena, some people have asked question, I have epilepsy. Will my kids have epilepsy? And how to find out? Can you give short answer, ma'am? Well, it is not necessary that kids will definitely have it. So that's a myth that since I have, kids will have it. So thank you so much. Fear should not be there. However, there is a small percentage of epilepsy where there can be a genetic factor. So that you have to discuss with your doctor, and then you will be able to get an answer. Yes, thank you so much. That's very impactful. When patients come to me, they ask, will our children be affected? If we go by the science and literature, I say 1 in 32 children. 1 in 32. If you are going to be a 32, one may have, but which one will have, that's difficult to say. But there is very less, just 3 to 4% chance. If parents have idiopathic genetic epilepsy, only then. Param, can you take up some question? Some people with epilepsy have asked, they are on levetiracetam, and can it cause side effects? Okay, so yeah, I was and reading what the to do in questions. that? Questions only. So I'll take up this one then. The levetiracetam. Okay, I mean, just for knowledge, the levetiracetam is a broad spectrum drug. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, काफी फोकल और जनरल एपिलेप्सी में काम आती है, लेकिन like any other drug, most of the जो एपिलेप्सी ड्रग्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो ये जो डिटेल है वो तो हमें या पढ़नी पड़ेगी या अपने डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी. पर एक जो कॉमन साइड इफेक्ट कई बार नोट किया जाता है इसमें, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेल टॉलरेटेड, कि जिनको कोई साइकाइट्रिक इश्यूज हैं पेशेंट्स को, या उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, उनमें ये थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह या कुछ साइकाइट्रिक इश्यू बढ़ने का चांस हो सकता है. इट इज नॉट वेरी मच, बट अराउंड 10% और सो आगे पीछे थोड़ा दीज पीपल कैन हैव. सो इसमें थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ेगा कि अगर किसी को साइकाइट्रिक इश्यूज हैं तो उसमें लेवेट्रिसेम स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से बात कर लें. Thank you, Param. In the meantime, actually, I want to stop it, but I am helpless. So 1 minute. एक मिनट, Mamta. Still, there are 164 attendants. They still want to stay. I think they want to interact with us more. So we'll stay back. Yes, Mamta. हाँ सर, आई वाज वांटिंग टू, क्योंकि हम सब ज्यादातर डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे पास बहुत एक्सपर्ट एपिलेप्सी एजुकेटर्स नहीं हैं. लेकिन फॉर्चुनेटली वी डू हैव प्रिया, आई सी हर ऑनलाइन. तो मैं प्रिया से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रिया, कुड यू समराइज
in, shortly, what would be your parting messages? क्योंकि अभी भी लगभग 150 से ज्यादा मरीज हमें देख रहे हैं, तो तुम्हारे उनके लिए क्या मैसेज होगा? Priya, are you around? प्रिया, अपने को अनम्यूट कर लो. Yes, I was trying to. Yeah, Priya ji, please, and switch on your video. Switch on my. If possible, yeah. No problem. You can start with audio. Yes. Yeah. तो मेरा मैसेज लोगों के लिए ये होएगा कि शादी तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होती है सोसाइटी में, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और कुछ करने के काबिल बने. तो क्योंकि शादी, जैसे सब लोगों ने कहा कि टूट भी सकती है, कभी बनती है, कभी नहीं बनती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हमें अपने पैरों पे खड़े होना है. तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए. तो ये मैसेज सबके लिए होता है, केवल एपिलेप्सी, जिनको एपिलेप्सी है केवल उनके लिए नहीं, लेकिन ये जिनको एपिलेप्सी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी, लेकिन अपने जिंदगी चलाने के लिए जो भी करना होता है घर में या बाहर, वो सब हम कर पाएं. तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. Thank you, Priya ji. Thank you, Priya ji. Absolutely. That's why International Bureau for Epilepsy इस पॉइंट पे एम्फसाइज करती है कि पेशेंट विद एपिलेप्सी तो हम कहते ही नहीं है, हम सबको कहना पर्सन विद एपिलेप्सी. लाइक आई एम ए पर्सन, यू आर ऑल्सो ए पर्सन. सो दैट्स ए सिंगल वर्ड विच गोज कन्वेज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. और आप सबसे ये है कि पर्सन विद, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रॉब्लम है मंत्री में, एजुकेशन की, जैसे डॉक्टर मीना गुप्ता, पर धीरे धीरे कम हो रही हैं. मिथ दूर हो रहे हैं, फैक्ट सामने आ रहे हैं, भ्रांतियां दूर हो रही हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं. सो ऐसे प्रोग्राम से काफी बेनिफिट होता है. डॉक्टर बंसल, यू मस्ट हैव टेकन सम क्वेश्चन, कैन यू आंसर? राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र बंसल, इफ यू आर अराउंड. If not, then Dr. Ashok Kumar. Yes, sir. Quick, short, very short, quick. Yeah. सर एक क्वेश्चन है, अगर ब्रेन में बायलैटरल कैल्सिफिकेशन हो जाए तो एपिलेप्सी से क्या संबंध है? बहुत सारे बायलैटरल कैल्सिफिकेशन नॉर्मल है, और अगर ब्रेन में बहुत ज्यादा है तो आप हाइपोपैराथायरॉइड का जांच करा सकते हैं. बेटर यू मीट विद इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वही इंडोक्राइन का डॉक्टर से मिल सकते हैं. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. श्रीमल जी भी थे, डॉक्टर मंजरी एक बार गई हैं उनके वहाँ सिस्टम देखने. तो श्रीमल जी आप हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र सुरेखा को कहूँ, फिर राजेंद्र बंसल को कहूँ. श्रीमल जी है नहीं. डॉक्टर राजेंद्र सुरेखा, you have Guinness World of Record. Dr. Surekha, will you like to say a few words of giving good strong messages, short messages? So thank you for taking my opinion. And I felt I've worked with a lot of NGOs and with the free epilepsy camps. I feel that marriage and all these problems which everybody is facing are really very true, and some marriage epilepsy bureaus, as has been suggested, could be formed, and we could help the people. And I think the point which has to be emphasized is compliance. So I think compliance of drug is the most important thing for caregiver and the patient. And if that can be done, quite a number of problems of the epileptics can be solved. That's all. Thank you so much, Surekha. We also have KP Vinyan in the audience as a panelist. But before that, Vinyan, there are some questions related to children. Please read in the chat box and then you will answer. And Gautam is also there, Gautam Ganguly and Dr. Ravi Naik. Dr. Rajinder Bansal, can you, I think he is not around. Dr. Bansal, you are not here? Okay. Dr. KP Vinyan, are you around? Okay, some of the patients have asked that is it curable till Dr. Vinyan comes. Dr. Gagandeep, there are
3 or 4 people with epilepsy have asked, is epilepsy curable? Yeah, so the brief answer for that is these medicines can control seizures. We do not have a cure for epilepsy, but in many cases, epilepsy cures by itself. Or this is known as remission, and remission is equivalent. Remission or cure एक ही चीज होती है. So for practical purposes, कुछ ऐसी मिर्गी अलग अलग किस्म की होती है और कुछ ऐसे मिर्गी की टाइप्स होती हैं जो अपने आप ही किसी एज पे जाके ठीक हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं. तो उन केसेस में हम जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उस एज पे जाके वो मिर्गी की दवाई बंद कर सकते हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर गगनदीप. जैसे छोटे बच्चों में फिट्स होते हैं, नियोनेट्स में, अगर शुगर कम होने से हो, कैल्शियम कम होने से हो, वो ठीक हो जाते हैं. बुखार वाले हों, ज्यादातर ठीक हो जाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम होती है. जैसे एब्सान सीजर कहते हैं, या जिसको सब एक्चुअली हिंदी में एक ही वर्ड है, मिर्गी का दौरा. एक्चुअली दैट मिर्गी के दौरे बहुत टाइप के हैं. वो बड़े वाला दौरा ही सिर्फ मिर्गी का दौरा नहीं होता, तो वो भी ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, और बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं. 3 साल अगर आप ठीक रहते हैं, आपकी ईजी ठीक आ रही है, एमआरआई ठीक आ रहा है, तो बहुत चांसेस हैं आपकी कंट्रोल में है और शायद वो क्योर भी हो गई है. तो मेरे ख्याल अब काफी टाइम हो गया, 6:45. अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या मेरे कोई कुलीग जिन्होंने कोई क्वेश्चन पढ़ा हो और आस पास हो तो जवाब दे सकते हैं. नहीं तो आई थिंक हम इसको यहीं पे क्या कहते हैं हिंदी में कहना, ममता नाराज हो जाएगी, नहीं तो विराम देना चाहेंगे. ठीक है ममता, ये वर्ड ठीक है? हाँ, ये टॉलरेबल है सर, ये टॉलरेबल है. विराम देना चाहेंगे. आराम देना चाहिए. तो विराम के पहले केवल एक मेरे से आपसे अनुमति चाहती हूँ कि मैं, यशोदा भी यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं, उनसे एक आखिरी कुछ फ्यू वर्ड्स ले लें, क्योंकि शादी हमारे मरीजों के लिए बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन रहता है. तो यशोदा जो है, ममता कम ऑन, ये बहुत शादियां करवा दी आज आपने. सर यशोदा की हम जरूर प्लीज एक्सपर्टीज का फायदा उठाएं. तो यशोदा 1 or 2 liners. Yeah, sure. Yashoda ji, just brief. Yeah. Yes. Firstly, thank you for giving me this opportunity. और yes, ममता जी, आपने जैसा कहा कि शादी करना यही एक कुछ सक्सेस है, ऐसा नहीं रहता है. However, हम जब इंडिया में देखते हैं तो ये सोच रखने वाले बहुत कम लोग रहते हैं वैसे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा ही लगता है कि शादी होना यही एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट ऐसा लगता है. पर जैसे मैंने मेरे स्पीच में कहा कि पहले काउंसलिंग, फिर अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, खुद को पहचानना, ये स्टेप पहले लेनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है. और मैं सबको यही कहूंगी कि आपके नजदीक जो भी काउंसलर हो, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो. यशोदा, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू यशोदा. इसमें डेफिनेटली ये है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें, एक दूसरे से डिस्कस करें. आई विल नॉट टेक नेम. मिस के, who is under my follow-up, comes to me. She has explained to her to-be husband, and they are so happy. And I also have a number of videos where people have achieved from childhood to adulthood, and now they are like ambassador of epilepsy in our country. So I think we had very interesting session. There were close to 250 participants, and still 144 are around, including the panelists. And we had very large number of questions. The maximum this time 57. Still some are unanswered, and many will like to know from the experts. Later individually you can put it in the chat box. They have asked about yoga, they have asked about disability, and so many pertinent questions are there. So I think वो हम क्योंकि 6:45 हो गए हैं, 6:45, ये मेरा रूटीन नहीं होता कि कोई सेशन लेट हो, पर आज इतना सबने इंटरेस्ट शो किया और मैं ग्रेटफुल हूँ इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन दिल्ली चैप्टर का
Indian Epilepsy Association Central Office, and my colleagues from Delhi who have spared time to give their valuable opinion, and also friends from all over the country. So with this, as Dr. Gagan is saying, the feedback form must be filled. And Gagan, you can say, you can sum up. Some are asking that, Mamta just, some are asking that, will these presentation be available? I think you put it on the YouTube. Sir, And then Dr. Mamta wants to, yeah. हाँ, मैं केवल ये बोलना चाह रही हूँ कि हम जिन लोगों के प्रश्न आपके ऑनलाइन मतलब अभी लाइव आंसर नहीं कर पाएंगे, हाँ, उनके लिए आई एम वेरी अपॉलोजेटिक, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करेंगे और आपकी ईमेल आईडीज होंगे तो हम आपको पर्सनली वो जवाब भेज देंगे. Thank you. Absolutely. Gaganji, your last few words. Yeah, and then we thank can you. close. And yeah, Mamta, you've said exactly what I wanted to say, that the IT team will provide a list of questions, and all those questions would be made available to the organizers, the Delhi chapter, and they will be able to give reply provided their emails are there. So thank you. It is extremely inspiring, both in terms of the quality of presentations, excellent, all the speakers. I must congratulate you. And also what is inspiring is the participation, fantastic participation. Congratulations, Delhi chapter. It was a great show. Great, many congratulations. Thank you so much. We are going to be meeting again next month, but next month is going to be the International Epilepsy Day and the National Epilepsy Day, and we are going to be celebrating it in a great way. Thank you so much.